ये मैं अपने एग्जांपल से बता सकता हूँ, लाइक if I compare myself to 3 years ago who I was, and Mm-hmm. during that period what I am now, it's only because कि मैं कितना अपना पर्सपेक्टिव को चेंज किया खुद के बारे में, and how I acted upon things with proper responsibility towards my family, towards my work, or towards my team, or whatever that is. ठीक है, so it shapes your work ethics and shapes your perception towards you. ठीक है, लाइक बिकॉज यू नो दैट यू कैन टैकल एनी टास्क दैट हैज बीन गिवन टू यू, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसके पीछे, सो दैट right now the world is distracted, right now the world is engaging in stuff that don't serve them. तो Mm-hmm. उसको लेके रिस्पॉन्सिबल होना gives you the power to get rid of those bad habits and focus on the right things. And integrity Right. means इसका मैं अगर बेस्ट एग्जांपल दूँ तो I got scolded by my mentor. Hi Saurabh, welcome to the Shubham Bhaviskar show. Really, thank you for welcoming me, inviting me over here, Subham. I'm glad. ओके, सो सौरभ आपका एक इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस के लिए. So, I would say my introduction is going to be pretty small and also really going to be going to deep dive like मैं भी क्या करता हूँ. So, how Mm-hmm. I have started my journey. So, I am Saurabh Panda and I run a company called Nexen Panda Private Limited, and it's a marketing agency based out in Bangalore. So, what we do is we help people to get more clients and revenue through strategic marketing, and that we do the market research for them and everything so that they can grow their client base and also their revenue. In short, we help businesses to grow their revenue. ओके, दैट्स ग्रेट. सो सौरभ, मतलब आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? Uh, Journey started in 2019, I would say. Like when I got the वो होता है ना कीड़ा entrepreneurship का एक word आ जाता है माइंड में कि like I wanted to discover what this thing is. या. So I started my journey as a content writer. From there, I started making some money and use that money to start our own e-commerce company called paperbooks.in in my hometown. Okay, ओके. so I was in my third year of my engineering over there. So there I started this business along with my two friends. But eventually we ran this business for around, you can say, 5 to 6 months. We were selling products through offline and online also, and we were making decent around 10 to 12,000 at that period. ओके. But then COVID came in 2020, right? So everything becomes a issue over there, and my two co-founders really like back off from that particular idea. So we paused it because we started having some money issues also. And या. when you're starting an e-commerce business, it's basically you need to have funds in the back end, या. right? राइट. So अगर आपके पास fund नहीं है, then you won't be able to initiate something, because when you're launching business आपको खुद का पैसा कुछ लगाना पड़ता है, राइट. तब जाके कुछ बनेगा. So we didn't have that, okay, because we were ओके. selling very less also. But that particular thing taught me something about digital marketing. Okay, like because I was researching in Google and YouTube, like कैसे सेल्स बढ़ाना है, कैसे एसईओ करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, वो कीड़ा मेरा कंटेंट राइटिंग के साथ जुड़ गया कि लाइक आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि मार्केटिंग का फंडामेंटल क्या होता है, लाइक व्हाट आर द बेस थिंग्स दैट एक्चुअली गोज इनटू मार्केटिंग दैट हेल्प्स पीपल सेल मोर, एंड दैट या. इज कंटेंट, द वर्ड्स यू से, टू थिंग्स. राइट. एंड ये दोनों चीज़ों से आप पूरा मार्केटिंग करते हो, ठीक है. वर्ड्स से होता है, अगर मैं आपकी बात करूँ, लाइक इफ आई से समथिंग गुड टू यू दैट विल मेस्मराइज यू इन सम वे, राइट, राइट. ultimately. So how you choose and how you portray your product and services, your story to your target customers, या. that's how you nurture those people. So I started learning, and I learned, I guess I would say, started learning Facebook ads from Google and even from YouTube. I got some few clients initially, only two clients. ओके. So I worked with them. From there, I started scaling. Had my another first business with my another co-founder, but it eventually closed because of some disruption between founders. And then I started Nexen Panda after 1 year. Okay, ओके. and now we are running this, having a team of 8 people now. ओके, सो स्टार्ट किया था Right. तब, मतलब आपने इंडिविजुअली स्टार्ट किया था सारी चीजें? Correct. Correct. I started learning on my own, and that's it. तो आप साथ में कुछ जॉब वगैरह कर रहे थे या फिर सिर्फ आपका पूरा फोकस इस पे ही था? ड्यूरिंग कोविड मैं कुछ गिग्स उठाता था जो कि कंटेंट राइटिंग के ऊपर ही बेस्ड होते थे, एंड हम्म. फ्रॉम देयर आई वाज मेकिंग सम मनी एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दोज मनी इन हियर. Okay, and from there I started getting clients from some network and Facebook groups. But eventually या. I struggled with many things. Business has a lot of struggle when you're initially starting out without having some business background. या. So that was the thing. And
वो स्ट्रगल रहे, एक कंपनी फिर बंद हुआ 2022 को, फिर मैंने 1 साल बाद मैंने नेक्स्ट जेन पांडा शुरू किया फाइनली। हम्म। या तो सौरभ मुझे ये बताइए कि मतलब स्टार्टिंग में हम तो इंडिविजुअली करते हैं, राइट? देन उसके बाद में अगर स्केल करना हो तो हमें टीम की जरूरत पड़ती है। तो आपने आपके टीम को कैसे ढूंढा था मतलब, और आपने कैसे देखा कि उस पर्टिकुलर जो आपके टीम मेंबर्स है उसमें उतनी कैपेबिलिटी है वो चीजें करने की? कैपेबिलिटी है उस चीज़ें करने की, राइट? या। आई गेस व्हेन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड आपको जब पता चलता है कि इसका फंडामेंटल क्या है एंड हम्म। आप मार्केटिंग को किस तरह से देखते हो, सो आपको ना, जब आप इनिशियल हायर्स होते हैं ना आपके अंदर, आप उनको देखते हो कि उन पे देखते हो कि लाइक वो कैसे मार्केटिंग को देखते हैं, राइट? राइट, फॉर हाँ। एग्जांपल, let's say I want to hire a person who will run ads for my client. Okay, हम्म। I want to see that how curious that guy about researching about marketing. Okay, it's not that वो बंदा कितना खुद से क्यूरियस है जानने के लिए कि मार्केटिंग परफॉर्म कैसे करता है, वो रिसर्च कितना डालता है, हाउ मच एफर्ट ही इज पुटिंग इनटू अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री, या। राइट? सो इससे आप पता कर सकते हो कि वो कितना बेटर वे में एडवर्टाइजिंग चला सकता है, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द कस्टमर्स अकॉर्डिंगली, ही कैन राइट द मार्केटिंग मैसेजेस टू डिलीवर द रिजल्ट्स. It's ओके। not about only hiring the marketing aspect, it also the other department of the business, like how curious they are and how हम्म। they are willing to grow. ओके। और जब आपने Yeah. स्टार्ट किया था तो आपने जीरो एक्सपीरियंस से स्टार्ट किया होगा, राइट? तो फिर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपने मतलब क्लाइंट्स को कैसे फाइंड आउट किया था एंड पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड किया था फिर आपने? So, जो हमारे I started giving great results to my client. That's the first thing. या। So for that reason, I have maintained two of my clients till now from the last 2 years. वाह। Okay, and they're still with us and working with us because I am delivering great value. जो भी हो जाए, like whatever doubts that we can solve for them, whatever comes in our capability that we can deliver them to them, we give them, so that they will feel obligated and also they will feel valuable because we are giving them so much and या। we are also charging for that. Okay, जब वैल्यू बेस्ड हम्म। चार्जिंग होगा, तो आई बिलीव इन वन थिंग टू, जब आप इस फील्ड में रहते हो ना, व्हेन यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल, यू लर्न मल्टीपल थिंग्स, कौन सा कहाँ पे चलेगा, क्यों नहीं चलेगा. या। या ओके। और मार्केटिंग में कैसे इंटरेस्ट आया था मतलब स्पेशली, कि मार्केटिंग ही चूज आई करना है और यही कंटिन्यू करना है? Yeah, like it started from the content writing journey, as I told, right? या। So I was writing content to earn money while in my college. So, but once I started, you start connecting dots. When you look in the back, you saw that okay, this is the fundamental that I have built, and या। that actually makes the thing goes. Okay, राइट। फिर उसके राइट। बाद टेक्निकलिटीज रहते हैं जो कि टूल्स वगैरह आप यूज करोगे उसमें होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मार्केटिंग आती है, वर्ड्स प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन, या। राइट? जब किस तरह से आप एक चीज को दिखाते हो, कैसे बोलते हो, वो आपको बेचेगा, राइट? राइट। So the only reason I loved, because I am a curious guy and I love to experiment on multiple things and I want to know कि इसके पीछे का रीजन क्या है और क्यों परफॉर्म कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा. So I get into a depth of everything. अगर या। मार्केटिंग की बात करो, like there are a lot to learn. Every industry, every business will teach you at something at some point. Okay, ओके। तो कुछ कोर होते हैं जो कि फंडामेंटल, जिसको आपको पकड़ के चलना होता है, बट उसके बाद जिसके साथ आप काम करोगे वहां से सीखोगे. राइट। And when you have a multitude of clients and from different industry, you know a lot that give you insights in every stages. कि इसका या। बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं, कितने प्राइस में आ रहे हैं और कितना वे में सेल कर सकते हैं इसको. सो यू लर्न स्टेप बाय स्टेप. ओके। और जब भी हम लोग कुछ स्टार्ट करते तो एक फियर होता है, राइट? कि मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ हम्म. तो उसमें मैं या फेल हो गया तो क्या होगा, या फिर क्लाइंट्स नहीं मिले तो क्या होगा? वो आपने भी फेस किया था? एब्सोल्युटली. ओके। Like the biggest decision of mine was to get into this thing by getting rid of a job. Like मेरे घर में बोले थे कि get into a job first, do job, then think about doing a business. But I found opportunity in this thing. But वो imposter होता है ना, like जो आप पहले कभी किए नहीं उस चीज़ को, या। and you're doing it for the first time, and that kicks you always in the back of the mind, because जब आप क्लाइंट कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, लीड्स नहीं ला पाते हो, आपके माइंड में हमेशा चलो कितना आगे चल पाऊंगा, उसके बाद क्या होगा, मैं कुछ या। कर पाऊंगा कि नहीं, वो चलता रहेगा, लाइक. बट एनीवेज, टू डील विद imposter syndrome, I would say just work and learn and work.
या दैट्स द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ इट, बिकॉज़ अल्टीमेटली होता क्या है ना, लाइक हम्म। जब आप काम करोगे आपको प्रोसेस पता चलेगा, जब आपको प्रोसेस पता चलेगा देन यू कैन ब्रिंग मोर मनी, मेक मोर क्लाइंट। राइट। या ओके, बट सो वो जब आपने, हाँ, यस यस, प्रोसेस में सॉरी। ही गलतियाँ होती हैं। हम्म। दैट्स इट। ओके, सो जब आपने स्टार्ट किया था और आपको समझा कि आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, right? तो आपने वो स्किल्स को और मास्टर करने के लिए आपने कोर्सेज किए थे या फिर आप यूट्यूब से सीख रहे थे? आपने किया क्या था मतलब बेसिकली? फर्स्ट थिंग गूगल, सेकंड यूट्यूब, थर्ड एक्सपेरिमेंटेशन। ओके। मतलब मैंने मुझे फंडामेंटल पता चल गया था कि लाइक आप फेसबुक में चला लो, गूगल में चला लो, कहीं पे भी चला लो, आप यूट्यूब के ऐड देख लो, वो कुछ ही फंडामेंटल के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जो कि पूरा सिनेरियो बेस करता है। उसके बाद हो गया आपका करंट ट्रेंड्स, या। जो ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, यूट्यूब में कौन सा कंटेंट लोग देख रहे हैं, किस टाइप का थंबनेल्स परफॉर्म होते हैं, वो बाद में आता है। बट या। फर्स्ट इज दैट हाउ यू आर गोइंग टू शोकेस योरसेल्फ टू द पीपल, दैट इज द फंडामेंटल। एंड वहाँ पे आपका पूरा बेस बिल्ड होता है, एंड दैट टेक्स लॉट ऑफ वर्क, बिकॉज आपको उस तरह के कंटेंट सोचने पड़ेंगे, उस तरह के मार्केटिंग कॉपी लिखनी पड़ेगी, एंड देन यू कैन मेक समथिंग बेटर इन द मार्केटिंग स्पेस। ओके, और फिर स्किल मास्टर करने के बाद आपने क्लाइंट्स को पिच किया होगा मतलब स्टार्टिंग में सर्विसेज वगैरह। तो या आई डिड। हाँ, हाँ, तो फिर मतलब आपका वे क्या था मतलब पिच करने के लिए? आप डीएम करते थे या फिर रेफरेंस से क्लाइंट्स लेते थे? कैसे करते थे मतलब? मोस्टली स्टार्टिंग इनिशियली रेफरल से था, हम्म। एंड रेफरल से मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया कि एक जो हमारे 2 क्लाइंट है अभी, दे आर स्टिल विद अस फ्रॉम द लास्ट ईयर बिकॉज़ वी आर डिलीवरिंग देम ग्रेट वैल्यू। ओके, राइट। मिनिमम से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम तक पहुँचा। तो हम्म। वी आर यूजिंग दिस थिंग्स बिकॉज़ वी फोकस दैट टू मेक दिस बिज़नेस गो यू हैव टू कीप पीपल फॉर अ लॉन्गर रन एंड गेट या। मोर लीड्स। तो इनिशियली मुझे पता नहीं था कि बहुत सारे मल्टीपल मोड्स ऑफ आउटरीच होते हैं, एंड जो हम्म। कि मुझे एक पता था दैट इज़ कोल्ड कॉल, ठीक है? या। 2021 में। एंड आई वाज रियली अफ्रेड ऑफ मेकिंग कॉल्स टू पीपल। मैं हम्म। यूके का बिज़नेसेस को कॉल करने वाला था, एंड हाँ। बिफोर डायलिंग ऑन द नंबर आई वाज जस्ट शिवरिंग, राइट? हम्म। So, like, how I'm going to speak that I called one person and he हाँ। picked up the call, हम्म। that he asked me, "Hey, is this the cold call or what?" I was like, "Cut the phone." I cannot say it anymore. Okay, but he was just asking, but it's normal from a normal perspective. He is just asking whether it is a cold call or what. I या। could have said, yes, it's a cold call. I just wanted to have some conversation, but my fear was on that pace that I was not able to speak a single word out of it. I was just shivering, like, dude, I can't. Before making one phone call, I was thinking for 5 minutes. ओके। And in 5 minutes, I can dial to at least 10 people, I would say. हम्म। Yeah. या। सो आपको कितने कॉल्स लगे थे फिर वो फियर को ओवरकम करने में? Still मैं ओवरकम कर रहा हूँ, लाइक अभी बेटर हो गया है, लाइक आई हम्म। आई नो नाउ आई हैव अ टीम हु हैंडल द सेल्स पार्ट, कोल्ड कॉल पार्ट। हम्म। बट एनीवेज मैं भी ये करता हूँ कभी कभी, राइट नाउ इट्स नॉट दैट मच, मतलब आई कैन इजीली मेंटेन द थिंग्स, बट फिर भी लगता है कभी कभी। हम्म। बट आप जितना कॉल्स करते जाओगे, जितना लोगों के साथ बात करोगे, मीटिंग करोगे, देन ऑटोमेटिकली आपके माइंड से हट जाएगा। या। या ओके, आपको मतलब आपके टीम मेंबर्स कैसे मिले थे वो स्टोरी बताओ। मतलब आपके दोस्त थे या फिर आपने कुछ हायर के लिए, हायरिंग करने के लिए कुछ पोस्ट वगैरह किया था? या जो इनिशियली जो हमारे टीम मेंबर जो थे वो उनके नाम आप धनराज है और आलोक थे, जो कि हम्म। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में काम करने लगे, हाँ। एंड उनसे मैंने काम शुरू किया पूरा, हम्म। एंड दे आर प्रीटी गुड एट देयर स्किल्स, आई वुड से। ओके, एंड डेफिनेटली आई वुड रियली अप्रिशिएट, वो मेरे को बहुत हेल्प करते हैं, सजेस्ट करते हैं उन चीज़ों में, एंड दे आर स्टिल विद अस। एंड हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट आई आफ्टर दैट वी हायर्ड सेल्स पर्सन, एचआर, इंटर्न्स, एवरीथिंग फ्रॉम लिंक्डइन। वो, ओके। और आप ये सब ऑनलाइन करते हो या फिर आपने मतलब सब एक जगह पे बैठ के करते हो ऑफिस टाइप? We have an office, but it's currently from a work from home model. ओके, तो वर्क इफिशिएंट होता है फिर वहाँ पे? Yep, it is. But हम्म। still, there is always room for improvement. There are कुछ तो lacunas रहेंगे ही। राइट, जब राइट। इनिशियली आपको पता नहीं चला कहाँ पे आप गलती करो, बट वो गलती ढूंढ के इम्प्रूव करना इज द बिगेस्ट थिंग। ओके, सो कोई भी पर्सन अगर इंडिविजुअली स्टार्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या ऐसे कॉमन मिस्टेक्स है जो वो फेस करता है? पहली बात तो ये है, इसका बहुत ही सिंपल आंसर मैं दूंगा, लाइक हम्म। कम अप विद अ गुड स्किल, हाँ। एंड इतना फोकस रखो कि भाई तुम फेल हो सकते हो।
दैट इम्पोस्टर विल ऑलवेज किक यू इन द बैक, अभी हमेशा करेगा आपको, बिकॉज जब आप यस। धीरे धीरे बढ़ते जाओगे ना, आप तभी भी आपको कुछ डर आएगा, ओके कुछ ना कुछ लेवल में, ठीक है। यू जस्ट हैव टू फेस इट एंड यू नीड टू डू द वर्क। मतलब या। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, जो कि नॉर्मल सब कोई यही सेम एडवाइस देंगे, जो कि बट हाँ, यू नीड टू वर्क, दैट्स इट। वर्क राइट। वर्क वर्क, दैट विल किक यू आउट, तभी मतलब एक्सपीरियंस आप आएगा, राइट। तभी एक्सपीरियंस आएगा। हाँ हाँ। मतलब होता क्या है, लाइक अब जब आप इम्पोस्टर किक करते हैं ना, टू अवॉइड दैट हार्ड फीलिंग, आप हम्म, छोटे 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 डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हो, कि इंस्टा चलाना, यूट्यूब में वीडियो देख लेना, एंड ज़्यादा खुद को इन्फॉर्मेशन मत दो, जितना हाँ। जानते हो उससे स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली आपको रास्ता दिखने लगेगा आगे आगे। क्योंकि हम्म, मैं भी एक ओवरथिंकिंग लूप में था, मुझे लग रहा हाँ। था कि क्या होगा क्या नहीं, बट वंस यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट थिंग्स, इट्स नॉट दैट हार्ड, बट इट कैन बी डन। राइट। और ओवर इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने से क्या होता है, मतलब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इम्प्लीमेंट करें या क्या नहीं पे। तो मतलब एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंटेशन साइड में रह जाता है और हम लोग सिर्फ ओवर थिंकिंग ही करने लगते हैं, राइट। तो मतलब जो भी करेक्ट। हम लोग सीख रहे हैं उसे तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यस, सो आई ऑलवेज डू वन थिंग टू डू अवॉइड दैट थिंग, सो हम्म, मैं एक नोट लेता हूँ। I हाँ। always jot down like what are the resources that I have till now. Okay, हम्म, it's in terms of money, in terms of people, in terms of connection. ओके। Just write them down हम्म, and think that how you can utilize these resources at the benefit, at the like most level, to get the हम्म, returns. Okay, या। तो आप अगर jot down कर लोगे ना, and हम्म, write down also like what skills do you have, strengths do you have, and what which part you are actually losing out. आपका हम्म, weakness क्या है? जब ये आपको पता चल गया ना, बाकी एरियाज में दूसरी जगह में फोकस देना कम ही कर दोगे, बिकॉज यू हैव दिस रिसोर्सेस, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। हाँ, लर्निंग के लिए कभी कभी आप देख सकते हो, बट या। इन द एंड एग्जीक्यूशन मैटर्स। मतलब द गैप बिटवीन योर थॉट एंड एक्शन शुड बी लेस। राइट राइट। ओके। सो आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? या। विदाउट मार्केटिंग हम भी ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। बिकॉज वी हैव सीन राइट। पॉडकास्ट एंड दैट्स वी गॉट इंस्पायर्ड एट सम लेवल कि मैं भी अपना करूंगा, एंड वी या। गॉट ब्रेन वॉश्ड एट सम लेवल, अच्छे लेवल पे किए हैं। मतलब ब्रेन वॉश ऐसा नहीं है कि किसी ने मैनिपुलेट किया है, बट एनीवेज वी आर लुकिंग एट पीपल एंड वी वांटेड टू स्पीक आवर आइडियाज एंड ऑल, एंड सो दैट वी अंडरस्टूड द पर्सपेक्टिव, मार्केटिंग या। आपको सेल करवा के देती है। इन दी एंड राइट। अगर कस्टमर चेंज करवाना है उसका बिलीफ, मार्केटिंग इज द नीड। बीजेपी मार्केटिंग करती है, कांग्रेस मार्केटिंग करती है, एंड सम राइट। पीपल दे पोलराइज पीपल टुवर्ड्स देम, बिकॉज द स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कम्स इन द वर्ड ऑफ पोलराइजेशन। वीक मार्केटिंग सब कोई करता है, राइट। मैं अगर ये एग्जांपल दूं, मार्केटिंग क्यों करना चाहिए स्ट्रॉन्ग इन अ स्ट्रॉन्ग वे, हाँ। हर बिजनेस का ना एक ट्राइब होता है, राइट। नो मैटर व्हाट इंडस्ट्री यू केम फ्रॉम, देयर इज अ ट्राइब दैट फॉलोज दैट बिजनेस, एंड दे बिलीव कि हाँ, ये सही हो कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव नर्चर्ड देयर माइंड दैट दिस वर्क्स लाइक दैट। या। ओके, और मार्केटिंग वही काम करता है। इट ऐसा नहीं कि बुरा नहीं है, बहुत मार्केटिंग और बुरी तरह से यूज कर सकते हैं ब्रेन वॉश करने के लिए, बट मैं या। प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप्स और सेलिंग समथिंग, you need to market yourself so that you will be visible to more customers, and you will be able to nurture those customers and sell those customers. या। फर्स्ट 3 पॉइंट ऑफ मार्केटिंग आता है, देन आपका सेलिंग आता है। अगर वो 3 पॉइंट में वो कस्टमर अच्छे से नर्चर हुआ है, वो थर्ड पॉइंट आपके लिए इजी होता ओके। सो अगर कोई कस्टमर कस्टमर है और उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, राइट। तो है। तो उसे आप अवेयर कैसे करोगे, मतलब स्टार्टिंग में अगर उसको नर्चर करना है तो? नर्चर करना है तो या। ओके, तो पहली स्टेप है कि आप क्या बेच रहे हो, राइट। हाँ हाँ। लेट्स से आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट का लेते हैं, सर्विस को छोड़ देते हैं, बिकॉज सर्विस बहुत है, प्रोडक्ट भी बहुत है, बट मैं प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, जैसे कि एक ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब वो क्या करता है, वट एवर दे प्रोडक्ट क्रीम्स दे मेक फॉर मैन एंड वुमेन, इट्स कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, वहाँ पे कोई एलर्जेंस वगैरह नहीं होता एंड वट एवर केमिकल्स नहीं होता है। तो देयर इज मामा अर्थ, देयर इज एम कैफिन इज देयर, एंड देयर इज मल्टीपल ब्रांड्स आर देयर, वाव इज देयर एंड एवरीथिंग। सो एज अ न्यू स्टार्टअप व्हाट यू आर गोइंग टू डू, राइट। हाँ सो हाँ। मार्केटिंग क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइक देयर इज ऑलवेज अ लूप होल, कि जो कि दूसरा बंदा नहीं कर पा रहा है, राइट। हाँ हाँ। तो एज अ marketer, as a researcher, you need to understand कि like वो loophole क्या है, and what my products can give and what others can't. Okay, so मुझे लगता है when it comes to product, आपका brand promotion initially एक वीडियो से करवाना is really important। जैसे कि and let's say कि मेरा target audience है women,
I want हाँ। to sell creams like organic creams to women or girls हम्म। from 18 to 50 तक ले लो, ठीक है, बिकॉज ओके। 50 में भी लोग औरतें लगाती हैं एंड एवरीथिंग. सो दे डोंट नो अबाउट माई प्रोडक्ट. सो व्हाट आई डू इज दैट I will start running some campaign, video campaign, where I'll be showing how our products are made, and those हम्म। advertisements would be catchy in the sense कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुक हो कि लोगों को देखने में मजबूर करे कि भाई ये है क्या. हाँ, तब क्या होगा अटेंशन ना, ग्रैब करे। टेंशन ग्रैब करे. वो जब हाँ। आप दिखाते हो वो प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज हो रहा है, कैसे बनाया गया है, वो छोटे 1-2 मिनट के वीडियो में, एंड आर हम्म। गिविंग सम रियली मैसेजेस कि वो प्रोडक्ट के पीछे का स्टोरी क्या है एंड एवरीथिंग, हम्म। वो लोगों को कनेक्ट करवाता है. एक बार अच्छा। दिखाओ, 2 बार दिखाओ, 10 बार दिखाओ, लोग धीरे-धीरे आपके वेबसाइट में आएँगे, दे विल स्टार्ट बाइंग फ्रॉम यू. वो जो ऑडियंस धीरे-धीरे बिल्ड होती है ना, आप उनको लेके फिर से मार्केट करते हो, राइट? हम्म। प्रोडक्ट का एग्जांपल है. यू बिल्ड ट्रस्ट बाय शोइंग द स्टोरी दैट जैसे आपका बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है? और इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ये पड़ता है कि लाइक आपको वो अच्छी वीडियो बनानी पड़ेगी. यू नीड टू शो द बैकएंड कि आपने आपकी टीम कैसे वो प्रोडक्ट को प्रोसेस करती है, कैसे बनाया जाता है. उससे क्या होता है ना, लोग एक ह्यूमन टच आता है, एक नेचुरल टच आता है कि आपको हाँ। ये नहीं लगेगा कि प्रोडक्ट स्कैम है और समथिंग, राइट? हम्म। दे कैन सी लाइक व्हाट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन ऑन देयर. ये राइट। हर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? हर चीज का ना मार्केटिंग में एक स्टोरी होता है, एंड यू नीड टू क्रिएट द स्टोरी सो दैट पीपल विल कनेक्ट विथ यू एंड दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग एंड स्टार्ट बाइंग फ्रॉम यू. लॉन्ग टर्म जर्नी है, बट अपफ्रंट में आप पैसा बनाओगे. बट एक होता है ना लाइक, जब व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट, आपका लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर बड़ा होना चाहिए, हाँ। देन यू विल बी प्रॉफिटेबल. ओके। और या आपके अब तक के सबसे बेस्ट लर्निंग क्या है मार्केटिंग में? बेस्ट लर्निंग अगर मैं मान लूँ मार्केटिंग में, जैसे कि किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो? मतलब ऐसी चीजें जो अगर बिजनेसेस ने अप्लाई की तो उन्हें रिजल्ट मिल सकते हैं। बेस्ट लर्निंग ये होता है कि आप कहाँ पे मार्केट कर रहे हो, क्या बेच रहे हो, वो मैटर करता हम्म। है. एंड उसके बाद आता है लाइक हाउ क्रिएटिव यू आर इन द एडवर्टाइजमेंट पार्ट. क्रिएटिव इन द सेंस की बात कर रहा हूँ, लाइक बोरिंग एडवर्टाइजमेंट सबको ही चलाता है. इफ यू स्क्रॉल थ्रू इंस्टाग्राम, आपको बहुत ही कैसे कम ऐड दिखते होंगे जिनको आप रुक के थोड़ा देखते हो, एंड वो रुक हाँ। के थोड़ा देखने वाला आपको होना चाहिए, ठीक है? मतलब आपको हम्म। ऐसा सोचना पड़ेगा कि लाइक आई वांट टू क्रिएट एन एड, रील बनाओ कि क्रिएटिव्स बनाओ, डिजाइन्स बनाओ, और यूट्यूब ऐड बनाओ. वो जो हम्म। 5 सेकंड होते हैं ना लाइक वीडियोस में, दैट शुड मैटर. ओके, मतलब वो राइट। 5 सेकंड में ऐसे कुछ दिखाओ कि लाइक बंदा देखे हो क्या रहा है, राइट? हम्म। वंस यू गेट दैट, बाकी का कन्वर्जन का मैसेजेस आप धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हो. तो मार्केटिंग में लर्निंग क्या है, लाइक right now in this particular time you have to be creative, you have to test multiple things, you have to test with different creatives. वीडियो के 5 सेकंड के हुक, वो 5 सेकंड में कौन सा मैसेज दिखा रहे हो, मतलब डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का कॉन्टेक्स्ट को लेके क्या दिखाना चाहते हो, कि वो कैसे जनरेट होता है कॉन्टेक्स्ट, व्हेन यू नो द पेन पॉइंट्स ऑफ योर ऑडियंस. जैसे हाँ। कि मैं मार्केटिंग सेल करता हूँ, मार्केटिंग सर्विसेज, एंड हम्म। मेरे कस्टमर को प्रॉब्लम क्या है पता है, लाइक इफ आई फाइंड आउट दे डोंट नो हाउ टू ऑप्टिमाइज एनी फनल. उनका क्या, तो वो लोग ऐड चला देते हैं, ठीक है? उनके हम्म। बाद पता नहीं चलेगा उनका वेबसाइट कैसा दिख रहा है, लैंडिंग पेज में क्या ऑफर है, ओके। उनका छोटी चीज़ें होती है ना, बहुत मैटर करती है, बहुत उनको पता नहीं होता. मे बी उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट उतना स्ट्रांग ना हो, मे बी हम्म। वो जिनके साथ काम कर रहे हो ही डोंट नो अबाउट इट. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइक आप कितना बजट डाल रहे हो, फेसबुक में कैसा आपका क्रिएटिव दिखना चाहिए, कितना कैंपेन्स चला रहे हो, बजट कितना है, आपका हम्म। लैंडिंग पेज में ऑफर कैसा दिख रहा है, टेस्टिमोनियल्स है कि नहीं. तो हम्म। आप ये सारी चीज़ें ना एक फनल बनाती है, एंड हाउ यू गिव वैल्यू टू योर कस्टमर्स, एंड उसके बाद आप सेल करते हो. ओके। और ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो बिजनेसेस करते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स में, जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? First of all, they are not open towards marketing. Many business I have seen, हम्म। they उनको पता नहीं होता कि लाइक कितने टाइम तक एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहिए. आई वाज हैविंग अ हम्म। कन्वर्सेशन विद माय क्लाइंट, ही टोल्ड दैट या। एक बार ऐड चलाओ तो काफ़ी होता है ना. मैं बोला नहीं काफ़ी होता, हम्म। बिकॉज़ आपको कैसे पता कि वो ऐड आपको कैसा रिजल्ट लाके देगा. यू कैन नॉट रन एन ऐड फॉर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स अनलेस वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो. सो आपको हम्म। क्रिएटिव लॉन्च करना होता है, एंड यू हैव टू चेक वेदर दैट हाउ इज़ द ऐड इज़ परफॉर्मिंग. उसके लिए आपको उसका सीटीआर देखना पड़ता है, कितने लोग ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, कितना कॉस्ट पर रिजल्ट जा रहा है, ठीक ऑडियंस तक पहुंच रहा है कि नहीं, लोग वेब कितने लोग विजिट कर रहे हैं वेबसाइट में और लैंडिंग पेज में. आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू रन मल्टीपल कैंपेन सो दैट यू कैन फाइंड आउट कि क्या आपके लिए काम करे, क्या नहीं कर रहा है. यू कैन नॉट कॉपी समवन. आप कॉपी कुछ लेवल तक कर सकते हो, बट उसके बाद यू नीड टू एक्सपेरिमेंट, राइट। and that takes energy, that takes research,
and that takes experimentation in the end. And they do a lot of mistake. मतलब उनको पता भी नहीं होता कि उनको वेबसाइट कैसा दिख रहा है, उनका लैंडिंग पेज कैसा दिख रहा है, एंड बस उनको कि हाँ ऐड तो चला ले, लीड क्यों नहीं। मेंटली आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ता है कि लाइक आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट मनी टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड देन आई विल डेफिनेटली फाइंड आउट अ गुड वे, देन आई विल कन्वर्ट पीपल। जब आपको वंस कस्टमर लीड्स लाना स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद आप उनको नर्चर कर सकते हो, बट फर्स्ट यू नीड टू पुट एनर्जी ऑन द मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्योंकि होता क्या है ना, लाइक इवन इफ यू आर इन द सेम इंडस्ट्री, आपका स्ट्रैटेजी अलग होगा, आपके मैसेजेस अलग होंगे। यू कैन नॉट कॉपी समवन एंड बिल्ड समथिंग। कुछ लेवल तक कॉपी होगा जैसे मैंने बताया, उसके बाद यू हैव टू प्ले योर ओन गेम। ओके। दीज आर द थिंग्स। सो सौरभ, आपको या क्या लगता है कि ऐसी कौन सी बेस्ट क्वालिटी है जो किसी भी पर्सन को एक्वायर करनी चाहिए कुछ भी बेटर करने के लिए? नंबर वन हो गया टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। नंबर टू हो गया हैविंग द पावर ऑफ इंटेग्रिटी। मतलब इंटेग्रिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस बिकॉज आप कुछ भी हो लाइफ में, अगर आपको पता चल गया ना कि कैसे रिस्पॉन्सिबल होना है, एक चीज़ को कैसे थोड़ा बेटर वे में आगे बढ़ाना है, एंड यू विल स्टार्ट टेकिंग एक्शन इन अ बेटर वे। क्योंकि ये मैं अपने एग्जांपल से बता सकता हूँ, लाइक इफ आई कंपेयर माई सेल्फ टू 3 years ago who I was, हम्म। and during that period what I am now, it's only because कि मैं कितना अपना पर्सपेक्टिव को चेंज किया खुद के बारे में, and how I acted upon things with proper responsibility towards my family, towards my work or towards my team or whatever that is। ठीक है, so it shapes your work ethics and shapes your perception towards you। ठीक है, लाइक बिकॉज यू नो दैट यू कैन टैकल एनी टास्क दैट हैज बीन गिवन टू यू। आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसके पीछे, सो दैट right now the world is distracted, right now the world is engaging in stuff that don't serve them। तो हम्म। उसको लेके रिस्पॉन्सिबल होना gives you the power to get rid of those bad habits and focus on the right things। and integrity राइट। means इसका मैं अगर बेस्ट एग्जांपल दो तो आई गॉट स्कॉल्डेड बाय माय मेंटोर, and he told that some one day like you are not competent enough। Okay, हम्म। so the only reason he told that is because I am not willing to put enough effort, but I was expecting results, right? हाँ। So even if I'm not willing to search for the fastest way and the better way to solve a solution, I am हम्म। expecting result। Okay, या। so how can you grow? And that hit me really hard when I heard the word incompetent। So कुछ कुछ होता है ना, लाइक कभी कभी आपको कुछ चीज़ें दिल में लगनी चाहिए, देन आप चेंज हम्म। करोगे अपना, राइट? आपका राइट। परसेप्शन खुद के लिए चेंज होगा, एंड आपको किस चीज़ को ना बोलना आप सीख जाओगे धीरे धीरे। ओके, हम्म। देन योर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स यू एंड द वैल्यू एक्चुअली ग्रोज आफ्टर दैट। ओके। सो आपके जर्नी में अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है? बेस्ट एक्सपीरियंस है कि लाइक कैसे बताऊँ, बेस्ट है सब कोई बेस्ट एक्सपीरियंस ही टू लाइक आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे हो यहाँ से, लाइक राइट। जब आप बिजनेस करते हो ना, नॉट अबाउट बिजनेस ब्रो, लाइक इट्स अबाउट एवरीथिंग आई वुड से। लाइक ये फिलोसॉफिकल ज्ञान नहीं दूंगा, बट रियलिस्टिक बात करता हूँ, लाइक जो मैंने खुद के ऊपर ऑब्जर्व किया है। हम्म। लाइक व्हेन आई गेट into this whole thing of marketing and building something of my own, so हाँ। I realized that it is shaping me as a person in a different way, हम्म। because I started questioning how I act, how I behave, how I talk, कहाँ पे हम्म। मेरे लैक्यूना रह रहे हैं, मैं खुद का खुद ही प्रॉब्लम हूँ, राइट? सो आप खुद को जब बेटर करते हो, धीरे धीरे द थिंग्स अराउंड यू स्टार्ट गेटिंग बेटर। ओके। Yeah, like this is the best experience are that you know, you learn to know yourself better because आप introspect करना सीख जाते हो। या। Yeah, because most people can't do it nowadays, and I have seen people who are bashing around क्योंकि उनका mind एक जगह बैठता नहीं है, so that is the worst life you can expect। हम्म। और वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है अब तक का? That I have taken many wrong decisions that because of my unawareness, जो कि मैं बेटर कर सकता था, बट उसकी वजह से रिग्रेट नहीं होता, एक लर्निंग है। हम्म। बट अभी भी कुछ मेरे जो पास्ट के एक्शन से अभी भी मेरे को कुछ बुरा कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं। फॉर दैट आई नो दैट क्यों मैंने वो लिया था एक्शन, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। वर्स्ट एक्सपीरियंस आपको सिखाती है लर्निंग्स, बेस्ट राइट। एक्सपीरियंस आपको सिखाती है। सो यू लर्न मोर फ्रॉम द वर्स्ट एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू द बेस्ट वन। राइट। ट्रू। सो उसके लिए बोला जाता है लाइक हमेशा आपको 3-4 स्टेप आगे का सोचना सोचना चाहिए, आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो आगे का, अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा क्या है। ठीक है, तो हम्म। इट कीप्स यू द माइंडसेट टू फाइंड सॉल्यूशंस इन अ बेटर वे।
जो कि आपके लाइफ को बहुत एरिया में धीरे-धीरे बेटर करती है। धीरे-धीरे, एक दिन में नहीं होगा। आप राइट। 1 ईयर डाउन द लाइन देख सकते हो कि आपके चॉइसेस ने आपको कैसे चेंज किया है। ये छोटी-छोटी चीज़ें मतलब जो ट्रिगर्स आती है ना लाइक कैसे रोक के मेन काम में ध्यान दोगे। ऐसा नहीं कि पूरा मज़ा-मस्ती छोड़ दो, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बट फोकसिंग ऑन द मेजर थिंग्स। ओके। और आपको या इंस्पायर क्या करता है वर्क करने के लिए सबसे ज्यादा? दैट दिस मार्केट हैज़ अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड जो कि दूसरे लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं। हम्म। सेकंड थिंग होगी मेरी फैमिली। ओके। या और ये 2 ओके। चीज़ें मतलब व्हेन यू नो देयर इज़ अ प्रॉब्लम बट उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाने के लिए यू नीड टू पुट द एफर्ट। सेकंड थिंग मेरी फैमिली। ओके। एंड फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे ऑडियंस के लिए? Final message is that like whatever career you are choosing just without getting distracted कुछ काम करो बेटर मतलब फोकस देके कुछ सीखो देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। वो जो थॉट और एक्शन के बीच में जो गैप है उसको कम करो एंड डेफिनेटली आपको बेटर कर देगा मतलब धीरे धीरे आप देख पाओगे ना लाइक आपके एक्शंस कैसे थोड़े थोड़े आपको बेटर करने लग रहा है। यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स अल्टीमेटली धीरे धीरे होने लगे वो चीज़ें। सो यू नीड टू फोकस ऑन द राइट थिंग्स। राइट। दैट्स या वो राइट ओके। क्या है वो आप खुद चूज करो। राइट। ओके। तो या बहुत मजा है भाई आपके साथ में बात करके। आपके बारे में थोड़ा बताओ लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट। या सो मैं लॉकडाउन में मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, मतलब पहले मैं सोलो करता था पॉडकास्ट। सो हम्म। मुझे बोर होने लगा फिर, मतलब अकेले ही बात सोलो करना इन द एंड देन सेंस वो, कैसे? सॉरी, सोलो इन मतलब द सेंस सेल्फ कैसे? हेल्प का जो कंटेंट होता है, लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर प्रोडक्टिविटी, जो जो भी मैं सीख रहा हूँ मैं वो शेयर करता था पॉडकास्ट पे। लेकिन मुझे वो बोर हो रहा था, मतलब अकेले अकेले बात करना, कोई सामने नहीं है। तो देन राइट। मुझे मुझे लगा कि मैंने इंटरव्यू टाइप करना चाहिए, गेस्ट को बुलाना चाहिए। सो देन आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट, फिर मुझे इसमें मजा आने लगा, तो अभी मुझे यही करना है फिर। या ओके सो ग्रेट। आई थिंक आई विश यू रियली गुड सक्सेस ओवर हियर जस्ट कंसिस्टेंट रहो एंड डेफिनेटली ग्लैड टू हैव अ वर्ड विद यू शुभम। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। विल मीट अगेन। ओके यस चलो थैंक यू सो श्योर, मच। फ्यूचर में करेंगे फिर पॉडकास्ट साथ में। या ये आप कंसिस्टेंट रहो ये भी अच्छा होगा। ठीक है। यस ओके यस। लेट मी नो व्हेन यू आर गोइंग टू पोस्ट इट। ओके ओके, मैं इसको फ्राइडे को डालूंगा 5 बजे। ठीक है आप मुझे बता देना फिर। ठीक है। यस यस। ओके ओके। चलिए थैंक यू। बाय बाय। या या